بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بولن گے سارے بولن گے خود نہیں بول سکتے ہونے اس کا نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہیں گے. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا سنیں نا ایک منٹ سنیں میری بات ایک منٹ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی جی ایک درس ہے نا درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے صحیح ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہوں اور عوام بھی بول رہی ہو. یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ان کے علماء نا اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے چھوڑے تحریروں کو سادہ کاغذ لائیں میں سائن کر کے دیتا ہوں جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں ہیں یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں ہیں یہ اس طرح کی مقصد حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے سائن موجود ہیں. لوگ کی آواز نہیں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے.
وہ چاہتے ہیں یہ پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ باد کس نے مارے نعرے انہوں نے مارے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اندر بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نعرہ رسول یا رسول اللہ بھی باہر کو نعرہ بازی کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے نا پھر اتنا بھی انتظار کر رہے ہیں آپ باہر چلے چلے نہیں نا باہر یہ چیز نہیں ہوتی آپ باہر چلے چلے باہر حکومت اجازت نہیں دیتی. ادھر کیا ہے آپ ادھر آ گئے آپ کیا مسئلہ ہے لے آؤ انہوں ہم عالم بھی نہ ہو تو عالم کی ہم ادب سے یہ بات کرتے ہیں کیا بھائی منا بولی سے بات کاٹنا انتظامیہ کے بندے نا جتنے مرضی کھڑے ہو. نہیں سر انتظامیہ کا اصول یہ نہیں کہ بندے کے ساتھ پہ چڑھ کے بھائی یہ بات کر رہا ہے یہ اصول نہیں ہے. خاموش رہنے کے لیے ان کو کہا گیا. یہ نہیں ہوتا یہ اس کو اگر منہ سے اشارہ بھی کرے میں نے ایسے وہاں کھڑا انتظامیہ کا فرق ہوتا ہے یار اس کو سمجھاؤ نا بزرگ کال کر دینا کوئی مسئلہ ہے اور ان سب کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں مطمئن کریں. اگر ہمیں یہ علماء مطمئن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ہمیں وہ مطمئن کرتے ہیں میں کس طرح آئے گا سر آئے گا اگر ہم حضرت یہ کیمرہ بند کریں گے یہ بند کر دیں اپنے سائڈ پر مارے ٹھیک ہے ہمارے ساتھیوں کی سائڈ پر نہیں نہیں یہ تو آپ نہیں کریں گے یہاں نہیں نہیں یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں. یہ کیمرہ بند ہو یہ کیمرہ بند ہو گم میں یار سیٹنگ کر رہے ہیں آپ باہر نکلیں کیوں نکال آرام سے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ ساڑھے کے بہت گارڈن اپنے جو ساتھی ہیں نا یہ سارے ادھر بیٹھ جائیں. تین آدمی ان کے آ جائیں برابر برابر آدمی ہیں. باہر والے آدمی اندر نہیں آئیں گے. وہ گفتگو جب تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. ایک آدمی آپ نے چھوڑ کے جائے گا. ایک آدمی جائے سب کو لا سکتا ہے. ہم کو اس طرح کی بات ہوتی کدھر آ گئے جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارا نظریہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. ایک مزید اور بات ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے بعض عقیدوں کو امام ابو حنیفہ نے بھی کفر قرار دیا. جو عقیدہ وہ رکھے ہوئے ہیں اس عقیدے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کفر قرار دیا ہے. قرآن حدیث علیحدہ ہے اس سے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم کسی پر کافر اور مشرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہمارا بیان سنیں.
کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ بس یہاں تک مان مطابق بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جن ساتھیوں نے سوال جب تو اگر مناظرہ ہوگا تو سوال جب نہیں ہوں گے، اگر تو بیان ہوگا تو پھر سوال جب اب وہ بات ہوگی نہیں، وہ کچھ کے ہوگا۔ میں ایسے کرتا ہوں آپ سارے ساتھی بات یہ تحریری کہ بھائی دونوں افراد جو ہے عوام آ جائیں گے باہر آ جائیں اور پھر اپنے افراد کی ساتھ دے کر کے اور ہم آپس بات چیت کریں۔ ہمارے بھی حالات بھی دونوں باہر آ جائیں، آپ اپنی پیس آپ کی لسٹ دیں، اپنی پیس آپ کی لسٹ دیں اور ہم آپس کو اشارہ کریں۔ 2 منٹ ابھی ساتھی کے ابھی کسی نے نہیں نہیں ہمارا ساتھی ابھی کیا نہیں وہ بھی کیوں بھائی جان سے بات یہ ہے کہ ہماری قوم ایک بات یہ ہے آپ کے صحابہ بھی منکر حدیث بھی کریں گے صاحب، بات یہ وہ ثابت آپ کریں، ہم یہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات یہاں جاتا نہیں ہے، ہم آپ کی بات آنے جا سکتا ہمارے پاس ہے، ہم آپ کی فی الحال اب یہ مقام طے ہوا ہے، صرف مسجد جو ہے اوپن ہوتی ہے ہر ایک کے لیے، اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ یہ مکان ایسا ہے جس میں برابر تعداد کے بعد اگر کوئی داخل ہونا چاہے مالک کے مکان روک دے، مسجد روکنے کی جگہ نہیں۔ اگر ہے ویڈیو بن رہی ہے سب کی اصلاح ہو جائے گی، ویڈیو دیکھ کے سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ برابر آتے ہیں، برابر آپ کو دیکھنے کا باہر آنے سے دار کروا دوں۔ چلو بات تو کرو اپنے علماء کو دیکھو۔ آپ سے ہار گیا تو آپ نے مارنا نہیں ہے۔ ہاں میں بڑھوں گا، آپ سے ہار گیا آپ چھوڑیں، آپ ان کے بات چلے جائیں وہ اپنے ساتھیوں کو کریں، اپنے ساتھیوں کے نام اپنے ساتھیوں کے نام سے پہلے کہ میں اس نظام کی بات نہیں کروں، کیمرے کا انتظام کرنے سے نہیں آپ تشریف رکھیں پلیز، کوئی بات نہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ کوئی آج کا بے شک آپ لیکن ابھی آرڈر ہے نا، چلیں کیمرے کا انتظام میں نے ہی کرنا ہے۔ نہیں ابھی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے بات نہیں کرنی۔ میں جوتے تلاش کریں گے اچھا میں پھر ادھر ہی ہوں، ہاں ٹھیک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ میں تمام احباب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ جامع مسجد ابوبکر صدیق جو ہے دیوبندی علماء کی مسجد، اس میں رمضان المبارک کی آخری تاریخوں میں انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے اپنے کچھ مناظر بھی، ایک الیاس گھمن صاحب تھے اور دوسرے علماء ان کو بلایا۔ انہوں نے اہل حدیثوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی، اور ان میں ایک جو بات تھی کہ یہ 1886 کی پیداوار ہے، انگریزوں نے ان کو ایجاد کیا ہے۔ تو دوستوں نے پھر مجھے فون کیا، تو غالباً 29ویں رات کو یہاں ہماری مسجد میں اعلان بھی ہوا کہ جو بھی آئے سوال کرے اور ان سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور دیوبندیوں کی اور حنفیوں کی تاریخ کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آیا، اور اس میں کہ اہل حدیث کون ہیں، اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، اس کو واضح کیا، اور پھر دیوبندیوں میں حیاتی اور مماتی 2 گروپ ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں گروپ حنفی ہیں، حنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ تو میں نے اللہ کی توفیق سے یہ جو حیاتی ہیں ان کا شرک ان کی کتابوں سے واضح کیا، جو مماتی ہیں ان کے اکابر علماء دیوبند ان کا شرک جو تھا وہ اس کو واضح کیا، اور فقہ حنفی اس میں جو قرآن اور حدیث سے مسائل ٹکراتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل، ان میں سے میں نے چند کا تذکرہ کیا۔ اس میں ان کے تصور اقبال صاحب
انہوں نے میں نے فضائل صدقات کا ایک حوالہ دیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ تو انہوں نے فضائل صدقات میری طرف بھیج دی کہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے فضل سے میں نے سارے لوگوں کے سامنے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہیں اس بات کے، کہ ایک شخص اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ورفع ہے، انسان اللہ کس طرح بن سکتا ہے جبکہ یہ انسان کو بھی اللہ ہی شمار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فضائل صدقات مجھے دی، میں نے صفحہ 558 پر، اگر وہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی ہے، اس سے واضح کیا کہ یہ آپ کی تحریر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو شرک در شرک ہے، یہ اللہ کو مخاطب کر کے انہوں نے بات کی۔ اس پر انہوں نے پھر تحریر کی کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے علماء آپ سے بات کریں گے۔ تو یہ تحریر، یہ آپ اس کو کریں، یہ تحریر جو تھی جس پر 5 افراد ان کے اور 5 افراد ہمارے باقاعدہ سائن ہوئے، اور مسجد کے کم و بیش 60-70 افراد جو تھے وہ اس بات کے گواہ تھے۔ اور یہ تحریر کہیں گے، آپ سی ڈی پر خود دیکھ لیجئے گا۔ اب جب یہ تحریر ہو گئی تو ان کے علماء پریشان ہو گئے، انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے سائن کیوں کیے، آپ کون ہوتے ہیں سائن کرنے والے۔ اس کے بعد پھر وہ ہمارے پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی کہ آپ ابھی موضوع طے نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ میں نے ان کے قاضی عمران محمود ہے، ماسٹر صدیق صاحب کا بیٹا، یہاں اس مسجد کے وہ غالباً متولی ہیں، نکاح رجسٹرار بھی ہیں، اس کو بلایا، اور میں اس وقت موجود تھے سلطان محمود صاحب بھی تھے، اور یہ جاوید خان صاحب کے 2-3 بھائی بھی موجود تھے، اور ایک آدھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس میں ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی فقہ حنفی کے وہ 10 مسئلے ہم سے لے لیں، تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلے بتائے نہیں گئے اور ہم کس پر گفتگو کریں گے۔ تو اس نے بڑی رعونت کے ساتھ یہ کہا، ہماری بڑی اسٹڈی ہے، ہماری بڑی ریسرچ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اب اتوار والے دن آپ سے بات ہوگی 8:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے، اس پر بھی یہی اصرار تھا کہ گفتگو کو کسی بھی طرح ٹالا جائے۔ پھر کل ان کے الیاس گھمن صاحب مناظر ہیں، سرگودا سے تشریف لائے، ایک یہ ماسٹر صدیق صاحب کے ہی بیٹے ہیں، مولانا وہ شفیق الرحمان صاحب ہیں، وہ آئے، اور ایک تصور اقبال صاحب آئے، اور ہمارے ساتھی مفتی صدیق صاحب تھے، وہ میرے گھر آئے۔ تقریباً 7:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے دن کے وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے رہے، اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا۔ یہ تحریر ہوئی، اس کو کریں جی اپنا ندیم۔ یہ تحریر لکھی گئی، اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے، اور جو حنفی عالم ہے، دیوبندی عالم ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے۔ اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے منٹ بعد ہوگی، یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بہی ہیں، جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں، مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ان کے مسائل، اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں، تو اس پر بات ہو جائے گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد، ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ کس بات پر گفتگو ہونی تھی، لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی، انہوں نے اس کا بہانہ بنایا، اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ تو ہم نے ان کو یہ بات کہی، میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے، تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی۔ اب
आज हमारे साथियों ने मस्जिद में ऐलान कर दिया कल कि दरस कुरान होगा। अब ये अगर दरस कुरान के लिए भी लोग आते तो बैठकर इत्मीनान से दर्स सुनते और सवाल जवाब करते, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से अपने ख़ास किस्म के दोस्त अहबाब के जो मदारिस से भी मुताल्लिक हैं, उलमा की शक्ल में भी हैं, उनको बुलाया ताकि यहाँ पर शरारत की जाए। वगरना बड़ी आसान बात थी कि 5-5 या 10-10 बंदे बैठ जाते और बैठने के बाद जो गुफ्तगू होती वो रिकॉर्ड होती और उसके बाद सारी दुनिया चाहे देखती। लेकिन अभी बात ये तय हुई, शाह साहब ने जब ये बात फरमाई कि हम उनके अकायद उनकी किताबों से कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया भी हैं, शिरकिया भी हैं, ये उनकी किताबों से साबित किया जाएगा। अब ये बात इन दोस्तों ने जो अभी उठकर यहाँ से गए, उन्होंने उनको बाहर जाकर बताई। उनके उलमा को भी इस बात की खबर है कि हमारे उलमा के अकायद उनकी किताबों में शिरकिया भी हैं और कुफरिया भी हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे। वगरना उनके जब बात हो गई कि 3 आलिम आकर बात करेंगे, आपस में शराइत तय करेंगे, फिर क्यों नहीं आ रहे? नाराबाजी कर रहे हैं, और नाराबाजी में भी क्या, ये तौहीद परस्त बनते हैं, नारा तकबीर भी लगा रहे हैं और नारा रिसालत की आवाज़ें भी बुलंद कर रहे हैं। सिर्फ मसला इनको पता है कि हमारे अकायद कुफरिया भी हैं और शिरकिया भी हैं, लेकिन अवामुन्नास को इन्होंने धोखे में रखा हुआ है। तो मैं आपको ये तफसील सिर्फ इसलिए ये मैंने बताई कि आप सबके इल्म में आ जाए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है। अगर हमारे अंदर कोई खामी है, मेरी ज़ात में कोई खामी है, तो उसकी निशानदेही हो, दुरुस्त किया जा सकता है। हमारे अकायद में कोई ख़राबी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम रुजू करने वाले लोग हैं, अपनी इस्लाह करने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग के थोड़े से अहबाब और फिर उनका शफीकुर रहमान कह रहा है कि हम इनको नहीं रोकेंगे, ये सब बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, तो साफ जाहिर है कि वो शरारत के लिए आए हुए। वगरना बड़ी आसान, अब जब आए हैं कि हम जी आपका बहुत अब एतराज़ हो रहा है हमारे ऊपर कि हम दरस सुनने के लिए आए हैं, आपने ऐलान किया है, तो फिर दरस सुनने का ये था आराम से आकर बैठ जाते, उलामा भी बैठ जाते ज़मीन पर, अवाम भी बैठ जाती ज़मीन पर, क्योंकि दरस सुनने आए हैं। गुफ्तगू कर सवाल दर्स होता, उसके बाद मौजू के मुताबिक जिस मौजू पर दर्स होता उस मौजू के मुताबिक वो सवाल करते, उनके जवाब उनको कुरान हदीस से दिखाए जाते, उनकी किताबों से दिखाए जाते, मसला हल हो जाना था। लेकिन उन्होंने डिमांड की कि हमारे उलमा के लिए कुर्सियां लगाओ, सोफे लगाओ। सोफा तब लगता है कि जब बराबरी की बुनियाद हो। बराबरी की बुनियाद तब बनती कि जब वो ये जो उन्होंने हमारे साथ तहरीर की इसके ऊपर वो गुफ्तगू करते, तो एक आलिम, उनके लिए भी 2-3 कुर्सियां लगाई जाती, उनका आलिम बैठता, उनके मुआवन बैठता और आपस में इन मसाइल पर कि जो पहले तहरीर शुदा बात है उस पर गुफ्तगू होती और लोग सुन लेते। और ये जिस तरह रिकॉर्डिंग हो रही है, जहां मर्जी आप पाकिस्तान में पढ़ देखें, आप बाहर किसी मुल्क में देखें, इंग्लैंड भेज दें, अमेरिका भेज दें, हर कोई देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन उनको इस बात की खबर है कि हम अगर बैठेंगे, हमारी किताबें खुलेंगी, हमारे उलमा के शिरकिया और कुफरिया अकायद सामने आएंगे, तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा और अवाम हमसे मुतनफ़र हो जाएगी। अवाम को मुतनफ़र, अपने आप से मुतनफ़र होने से बचाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया हुआ है। शोर मचा रहे हैं, दर्स भी सुनने नहीं आए, सिर्फ शरारत करने आए। तो ये तमहीद और तफसील सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के इल्म में बात आ जाए कि असल हकीकत क्या है। हम आज थोड़े बैठे हुए हैं, मगर हम में से भी किसी की ज़बान से कोई बुरी बात सुनी हो, कोई शोर सुना हो, हमारे किसी आलिम, हमारे किसी और दोस्त ने कोई ज़बान तेज़ी वाली इस्तेमाल की हो, सब इत्मीनान से बैठे हैं, मगर वो सब शोर मचा रहे हैं। ये शोर मचाना इस बात की दलील है कि उनके पास दलाइल नहीं है, उनके पास कुरान हदीस नहीं है। वरना जिसके पास कुरान हदीस हो उसको किस बात की परवाह है? आए बात करे, लेकिन दर हकीकत अंदर खाते कुछ और मामला है, लोगों को कुछ और बताते हैं, इसलिए अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारा ढोंग रचाया है। तो मैं अब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तारिकुर रहमान शाह साहब हफिज़हुल्लाह को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दरस कुरान इरशाद फरमाएँ और उसी मौजू पर इरशाद फरमाएँ कि जिस मौजू पर के अकायद उलमाए देवबंद क्या हैं, और फिर उसके बारे में हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब भी करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर जो भी भाई सवाल करना चाहता है करे सवाल। हमारी मजालिस में तो सवाल ही होते हैं।
जज़ाकुमुल्लाह खैर व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। आ जाओ दर्स बस चले गए हम बस दरवाजा बंद कर दें, कोई आए बेशक पुलिस आए कोई दरवाजा नहीं खोलना। अपना सदीक साहब शाह साहब कह रहे हैं हुण कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। हाँ पुलिस आए ता भी नहीं खोलना, पुलिस भी आए तो तब भी नहीं खोलना। तो अंदर जो है ना घर तो दाखिले की इजाजत नहीं है, ये वारंट लग गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे आप तमाम लोग जानते ही हैं कि इमारत बनाने से पहले इमारत की बुनियाद रखी जाती है। अगर इमारत की बुनियाद ना हो, इमारत हवा के झोंके से गिर जाती है, पानी के रेले से गिर जाती है। अगर बुनियाद पुख्ता होगी तो इमारत मुस्तहकम होगी, अगर बुनियाद पुख्ता नहीं इमारत बोसीदा होगी। यही मामला हमारे इस्लाम का है। जब तक इंसान का अपना अकीदा दुरुस्त नहीं हो जाता जो बुनियाद की हैसियत रखता है। अकीदा क्या है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह। ज़बान से इकरार करना इस बात का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इसका हमने इकरार करना है। तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल के साथ इसकी तस्दीक करनी है कि वाकई दिल में खोट नहीं है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई कलमा तो पढ़ा करता था लेकिन दिल में इत्मीनान नहीं था, दिल में खोट था, निफाक था, इसलिए अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें किया करता था। व अमलुन बिल जवारिह, इस अकीदे का पता कैसे लगेगा कि ये अकीदा सही पर है? जो अमल कर रहा है अपने आज़ा के साथ वो इसकी दलील बन जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जब अल्लाह हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह मुअज्जिन से कहलवाता है, ये मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाए। ये इसके अकीदे की तस्दीक की दलील बन जाएगी कि ये अमल के ज़रिए साबित कर रहा है कि वाकई मैंने जो अल्लाह को इलाह माना है मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, उसकी इताअत करने के लिए तैयार हूँ, इत्तिबा करने के लिए तैयार हूँ। बाज़ मकामात पर हम दोस्तों की सुस्ती होती है कि जिसकी वजह से अकीदे पर मुनाजरे की बजाय मसाइल पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आमीन ऊंची कहनी चाहिए कि नहीं, रफुल यदैन करना चाहिए कि नहीं, तरावी 20 हैं या 8 हैं। ये बात सही है कि रफुल यदैन अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आमीन बिल जहर अल्लाह के नबी का तरीक़ा है, 8 तरावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। लेकिन ये मसाइल अभी मामूली मसाइल हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक आदमी कैंसर का मरीज़ हो, टीबी का मरीज़ हो, अब वो डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, मेरा इलाज कीजिए। अब डॉक्टर सारी मेहनत उसके ज़ुकाम को दूर करने के लिए कर रहा है। इस डॉक्टर को पागल कहा जाएगा कि जो आदमी टीबी और कैंसर की वजह से मरने के करीब है तुम उसके ज़ुकाम के पीछे लगे हुए हो। ज़ुकाम ठीक है, एक बीमारी तो है, लेकिन इसका इलाज तब बाद में किया जाएगा, पहले असल बड़ी बीमारी को तो पकड़ा जाए। ये मसाइल हमारे यहाँ इख्तलाफी हैं कि आमीन कहनी चाहिए ऊंची कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये मसाइल तो तब आएंगे कि जब किसी इंसान का अकीदा और मुसलमान होना तो साबित हो। अगर एक आदमी का अकीदा ही सही नहीं है, कुफरिया शिरकिया है, ना उसकी नमाज देखी जाएगी, ना उसका रोज़ा देखा जाएगा, ना ज़कात देखी जाएगी, ना कोई ज़िंदगी का और अमल देखा जाएगा। पहले ही ये फैसला होगा ये अल्लाह के साथ शिरक करता था, इसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के साथ कुफ्र करता था, इसका कोई अमल देखा नहीं जाएगा, बल्कि सीधा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। उलमाए देवबंद अकायद कुफ्रिया शिरकिया रखते हैं, ये एक हमारा दावा है और इस दावे की दलील हमारे पास है, बल्कि दलाइल हमारे पास है। सबसे पहले ये किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद।
इस किताब को लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी ने। खलील अहमद सहारनपुरी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से एक आलिम हैं, और इस किताब को लिखने की वजह यह बनी कि अहमद रज़ा खान साहब सऊदी अरब गए और उन्होंने उलमाए देवबंद की बाज़ तहरीरें उठाकर उस वक्त के शरीफ मक्का के ज़माने में जो उलमाए हरम थे उनसे फतवा ले लिया कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, मुसलमान नहीं, दारा इस्लाम से खारिज है। जब उलमाए देवबंद को ये बात मालूम हुई और हुसैन अहमद मदनी जो है वो वहाँ उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। ये किताब जो पहले आपने जिसका फ़ोटो देखा, ये इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर से छपी है, और ये जो दूसरी किताब है जिसका अरबी में आपने भी फ़ोटो देखा है, ये सऊदी अरब में छपी है। दोनों खलील अहमद सहारनपुरी की तसनीफ़ हैं। पहली जो उर्दू में और अरबी में पाकिस्तान में छपी है, और वो सिर्फ अरबी में छपी है सऊदी अरब में, वो वहाँ तकसीम हो रही है। जब उलमाए देवबंद को इस बात का इल्म हुआ कि अहमद रज़ा खान तो हमारे खिलाफ कुफर का फतवा ले आया है कि ये काफिर हैं और दारा इस्लाम से खारिज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के उलमा से कहा कि आप लोग चूँकि उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने ऐसी तहरीरें पेश की हैं जिसके मानी आप नहीं जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये सवालात बनाकर आप दारुल उलूम देवबंद भेजिए। तो उन्होंने 26 सवाल तैयार किए और उनसे पूछा कि ये जो तहरीरें बाज़ आदमियों ने हमारे सामने पेश की, चूँकि हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे इसलिए हमें हकीकत का इल्म नहीं हो सका, लिहाजा आप लोग इन सवालों का जवाब दें, क्या वाकई आप लोगों के यही अकायद हैं या आपके इसके अलावा अकायद हैं? तो वो 26 सवाल 26 अकीदे बन गए, जिनके जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए, और फिर इन उलमा ने तस्दीकें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं, इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा जिक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक, सवाल ये है, और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं, क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, या क्या राय है? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं, इस किस्म की आयात में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नक्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताखिरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें
मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो। अल्लाह जो कुरान मजीद में ये कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, क्योंकि सवाल करने वाले ने यही सवाल किया, मा कौलुकुम फी अमसाल कौलिही ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस किस्म की आयात के बारे में कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब कहते हैं कि मुमकिन है कि इस्तिवा से मुराद गलबा हो। गलबे का मतलब कि कोई आदमी किसी चीज़ पर गलबा हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि हो सकता है इससे मुराद इस्तिवा से ये हो। और हाथ से मुराद कुदरत हो कि जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम को पैदा किया, कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद कुदरत हो, और ये भी हमारे नज़दीक हक है। अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते। पूछा यह गया था क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, जैसा कि इस आयत में ये मौजूद है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम अल्लाह के लिए ये जिहत जो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या इसको साबित करते हो? कहते हैं अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते, और यूं कहते हैं कि वो जिहत व मकानियत और जुमला अलामात हुदूस से मुनज़्ज़ा व आली है। ये है उस सवाल का जवाब। अब आइए कुरान मजीद की आयात की तरफ कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कहीं फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस जात से डरते नहीं हो जो आसमान में है। कहीं फरमाया अम अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस जात से नडिर हो गए हो कि जो आसमानों में है। कुरान की मुख्तलिफ आयात जो हैं इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में वाज़ेह है, एक लौंडी लाई गई और वो सहाबी इस लौंडी को आज़ाद करना चाहता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा इम्तिहान लीजिए, आया ये मोमिना है कि नहीं, ताकि मैं इसको आज़ाद कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। पहला सवाल ये था ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जब आपने उस लौंडी से पूछा फ़इशारत इलस समा, लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा आसमानों। आपने उससे दूसरा सवाल पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, तो वो कहने लगी अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिनतुन, ये मोमिना। ईमान की दलील क्या हुई और ईमान के बारे में सवाल क्या हुए, दो सवाल, एक अल्लाह के बारे में और ख़ास कर अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है कहाँ, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। वो जिहत और मकान जिसका ये इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी उसी के बारे में पूछ रहे हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। ये कहते हैं हम जिहत को भी नहीं मानते, मकान को भी नहीं मानते, अल्लाह कहाँ है। आम लोगों का तो यही अकीदा है अल्लाह हर जगह है, और उलमा का अकीदा ये है कि अल्लाह कहीं भी नहीं है। क्यों? अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं अर्श पर है तो अर्श तो महदूद है और अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं आसमानों में है, आसमान फिर भी महदूद है, अल्लाह लामहदूद है। कहीं दुनिया में है, दुनिया भी तो महदूद हुई, अल्लाह लामहदूद है। एक लामहदूद चीज़ महदूद में कैसे आ गई, लिहाजा उन लोगों ने अल्लाह का वैसे ही इनकार कर दिया कि हम अल्लाह के बारे में ये मानते ही नहीं कि अल्लाह है, अल्लाह लामकान है। ये उनका अकीदा ठहरा। तो हदीस से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के नबी उससे पूछते हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो ये मकान और जिहत के बारे में अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, और लौंडी जिससे सवाल हुआ वो भी जवाब इसी के बारे में देती हैं, फिस समा, अल्लाह आसमानों में। साबित हुआ कुरान और हदीस से कि अल्लाह ताला आसमानों में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस इमाम की ये तकलीद करते हैं वो इमाम इसके बारे में क्या राय रखता है। यही किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है, जिसमें वो अपने जवाबों को दर्ज कराते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं। हम मसाइल में सवाल, पहले सवाल की तौज़ी में वो इसका जिक्र करते हैं कि हम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, अकायद में इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते। माना क्या हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के अकीदे
गलत थे, इसलिए अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करती। अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म है और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्ताने घड़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था। और ईमान की कमी और ज्यादती का जो मसला है, बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरअ अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफता अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है अम फिल अर्द या जमीन में है। फ़क़ाल क़द कफ़र, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, लिअन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौक़ सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया, जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या जमीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़इन क़ाला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यक़ूल ला अदरी अल अर्शु फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या जमीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। कहने लगे अच्छा अगर ये मान ले वो कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन ये कहे कि मुझे पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है, क़ाल हुआ काफ़िरुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफिर है। लिअन्नहु अनकरा अन्नहु फिस समा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया कि अल्लाह आसमानों में है। फमन अनकरा अन्नहु फिस समा, और जो ये इनकार करे कि अल्लाह आसमानों में है, फ़क़द कफ़र, वो काफिर है, वो उसने कुफ्र किया। अब बतलाइए, जब अकीदे में इतनी बड़ी खराबी मौजूद हो, कुरान और हदीस
तो ठीक है, कुरान हदीस को एक तरफ रख दीजिए, आप कुरान पर ईमान नहीं लेकर आते हैं, हदीस पर ईमान लेकर नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम इमाम आज़म, जिनको आप इमाम आज़म कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि इमाम साहब जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह आसमान पर नहीं है, अल्लाह अर्श पर नहीं है, या अल्लाह का अर्श मुझे नहीं पता कि आसमानों में है कि ज़मीन में है, उसके बारे में क्या अकीदा है। इमाम साहब सरीहन कह देते हैं फ़हुव काफ़िरुन, वो काफ़िर। अब जिस आदमी के अकीदे में इतना बड़ा कुफ्र मौजूद हो, जिसको आइम्मा अरबा कुफ्र करार दें, और इमाम अबू हनीफा जिनके ये मुक़ल्लिद हैं वो भी इनको काफिर करार दें, तो फिर उनसे आमीन और रफ़ुल यदैन पर बहस करना मैं समझता हूं अबस, बेकार। अब आइए एक और मसले की तरफ। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की हैं और उन्होंने जिनकी बैत की है कासिम नानोतवी ने, जो मजहब देवबंद के बानी हैं। कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ये मजहब देवबंद के बानी हैं और इन्होंने बैत की है हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की ये किताब है कुलियात इमदादिया, जिसमें मुख्तलिफ किताबें यानी 10 किताबों को जमा किया गया है। इसमें से एक किताब वहदतुल वजूद भी है। अब वहदतुल वजूद का अकीदा क्या है, जिसके बारे में हाजी साहब खुद फरमाते हैं कि मसलाए वहदतुल वजूद हक व सही अस्त, दरई मसला शके व शुभे नेस्त, कि मसला वहदतुल वजूद हक है और सही है, इस मसले में कोई शक व शुबा बाकी नहीं है। अब ये मसला वहदतुल वजूद है क्या, इसको आम फहम जबान में मैं आपके सामने बयान करता हूं। एक किताब है मकातीब रशीदिया, उस्तादुल मुहद्दिसीन फकीहुन नफ्स कुतुबुल इरशाद इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के ग्रां कदर मकातीब का जखीरा, जिसको जमा किया है हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी ने, और इसमें इजाफा किया है मौलाना अब्दुल मलिक अतीक ने, और इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर पाकिस्तान से ये छपी हुई है। इसके सफ़ा नंबर 36 पर एक खत है जिसको जिक्र किया जाता है, और ये खत लिखा है रशीद अहमद गंगोही साहब ने इमदादुल्लाह महाजर मक्की को। मकतूब नंबर 13 है। रशीद अहमद गंगोही साहब ने यह खत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को लिखा है। अब उस खत के ये अल्फाज सुनिए। कहते हैं, पस ज्यादा अर्ज करना गुस्ताखी और शोख चश्मी है। या अल्लाह माफ फरमाना कि हजरत के इरशाद से तहरीर हुआ हूं, झूठा हूं, कुछ नहीं हूं। तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है। मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, और जो मैं है वो तू है, और मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब अर्ज से माजूर फरमाकर कबूल फरमाए। यही खत मौलाना ज़करिया साहब जो हैं, यही खत मौलाना ज़करिया साहब की किताब है फ़ज़ाइल सदाक़ात, उसके सफ़ा नंबर 558 पर, बाज़ किताबों में 556 सफ़ा है और बाज़ किताबों में 558 सफ़ा है। ये ख़त बेऐन ही वहाँ भी मौजूद है, और उन्होंने इसका हवाला भी दिया है कि ये मकातीब रशीदिया में शाया हो चुका है। जो किताब मकातीब रशीदिया हमारे हाथ में है, वो उसमें मौलाना ज़करिया साहब अमीर जमात तबलीग इशारा कर रहे हैं कि ये ख़त अलहदा से मकातीब रशीदिया में शाया हो चुका है, जिसका हवाला 558 सफ़े पर मौलाना ज़करिया साहब दे रहे हैं। और साथ साथ उसका ये हवाला भी जिक्र करते हैं, कहते हैं कि इस जगह दो वाक़े अपने, ये सफ़ा नंबर 557 पर इबारत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं, इस जगह दो वाक़े अपने अकाबिर के नमूने के लिए लिखने को दिल चाहता है। एक तो वो मकतूब ग्रामी जो शेखुल मशाइख कुतुबुल इरशाद हजरत गंगोही कुद्दसा सिर्रुहु ने अपने मुर्शिद
शेखुल अरब वल अजम हजरत इमदादुल्लाह महाजर मक्की अल्लाह मरातिबहू की खिदमत में लिखा, जो मकातीब रशीदिया में तबाह हो चुका है। इसके अल्फाज ये हैं, ये सफ़ा नंबर 557 पर ये इबारत भी मौजूद है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रशीद अहमद गंगोही जो मुरीद हैं हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के, वो उसको ख़त लिख रहे हैं। अब आप इस ख़त पर ज़रा ध्यान कीजिए। कहते हैं कि झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, तेरा ही ज़िल है तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक। कहते हैं मैं झूठा हूँ लेकिन जो कुछ मैं हूँ वही कुछ तू है, तो अल्लाह क्या बना। कहते हैं मैं तेरा ही ज़िल हूँ तेरा ही वजूद हूँ, अल्लाह का ना कोई ज़िल है, अल्लाह का ना कोई वजूद है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने कोई जना ना उससे कोई जना गया, ना वो किसी का जना हुआ है, ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वो वहदहू ला शरीक है ज़ात में। ना ईसा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों का अकीदा था कि ईसाई कहने लगे कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहने लगे तुम्हारा नबी अल्लाह का बेटा है तो उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे हैं, हमारा नबी भी अल्लाह का बेटा। अल्लाह ने दोनों को मुशरिक करार दिया कि तुम अपने अंबिया को अल्लाह का बेटा करार देते हो, ये शिर्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ ज़करिया साहब खुद अल्लाह को कहते हैं मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क। ज़करिया साहब ये रशीद अहमद गंगोही का कलाम बयान कर रहे हैं और कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि ये कलाम मैं अपनी किताब में दर्ज करूं। तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये कलाम दुरुस्त है। जो भी हाजी हज करने के लिए जाता है वहां जाकर क्या कहता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं इस बात की गवाही दे रहा हूं। और यहाँ ज़करिया साहब जो कलाम जिक्र कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोही का, उसमें कहते हैं अल्लाह मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क हैं। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद जिसको मानने वाले देवबंदी भी हैं और उलमाए बरेली भी। एक किताब दीवान मोहम्मदी के नाम से छपती है, दीवान मोहम्मदी, जिसमें एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। ये एक बरेलवी आलिम की किताब है, हमारा मुनाजरा भी उससे हो चुका है। जो आदमी वो किताब वीडियो में देखना चाहे वो किताब भी मौजूद है। जो किताब उन्होंने लिखी है मोहम्मद यार फरीदी साहब ने, उसकी तस्दीक अहमद सईद काज़मी, उनके बेटे MNA भी रह चुके हैं, बहुत बड़े आलिम थे बरेलवियों के, उनके यहाँ उन्होंने उसकी तस्दीक की है। एक देवबंदी ने गलती से ये शेर लिखकर अहमद सईद काज़मी साहब को लिख भेजा कि ये बतलाओ कि इस किताब में एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। इस किताब में कुछ उर्दू के अशार भी हैं, कुछ सराइकी के अशार भी हैं। कहते हैं तेरे मीम दे पर्दे पावण तो सदके, आहद थी के अहमद सडवावण तू सदके। आहद थी के था तू आहद और अपने आप को तू अहमद कहलवा रहा है, मैं सदके जाऊं तेरे। आहद और अहमद में फर्क क्या है? कहते हैं मीम दे पर्दे पावण तू सदके, आहद में अलिफ हे दाल आती है और अहमद में अलिफ हे मीम और दाल आती है। कहते हैं जो मीम दरमियान में आई है, ये मीम का पर्दा पहनकर आहद ने अहमद बनकर आया। इसीलिए कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। और ये शेर आपने इससे पहले भी दूसरे अशार इससे मिलते जुलते सुने होंगे कि चाचड़ वांग मदीना डिस्से ते कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन बातिन दे विच अल्लाह। चाचड़ जो है मदीने की तरह है और कोट मिठन बैतुल्ला की तरह है। जो पीर फरीद है, बाबा पीर फरीद कहते हैं जाहिर में तो ये बाबा पीर फरीद है, लेकिन बातिन दे विच अल्लाह, बातिन में असल में अल्लाह है। अल्लाह है, पीर फरीद का पर्दा पहनकर आया है, पीर फरीद के रंग में आया है। तो ये है वो अकीदा जिसका तस्करा यहाँ ये कर रहे हैं। तो एक देवबंदी ने ये शेर लिख भेजा अहमद सईद काज़मी को कि ये कुफर नहीं है। अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, पहले मोहम्मद से मुराद मोहम्मद यार फरीदी हैं।
मोहम्मद यार फरीदी जो दीवान मोहम्मदी के मुसन्निफ हैं और बाबा फरीद के जानशीन हैं। पहले मोहम्मद से मुराद वो है कि अगर मोहम्मद यार फरीदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया तब तो मुसलमान है, वरना दगाबाज है। अब अहमद सईद काज़मी उसका जवाब लिखते हुए कहते हैं, उन्हें पता था कि ये देवबंदियों की तरफ से रवाना किया गया खत है। कहते हैं कि अगर मोहम्मद यार फरीदी इस अकीदे की वजह से काफिर हैं तो तुम्हारे अनवर शाह समेत सारे उलमाए देवबंद भी काफिर हैं। क्यों? कहते हैं उठाओ फैजुल बारी को, और फैजुल बारी के 4वीं जिल्द में ये हदीस कुन तो समअल्लज़ी यस्मअ भी, इसको लेकर आओ, इसके सफ़े को खोलो। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी उलमा मशाइख हैं वो सब अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले थे। वो तशद्दुद नहीं किया करते थे, लेकिन मैं तशद्दुद भी करता हूँ, इस अकीदे पर तशद्दुद भी करता हूँ। साबित हुआ, यो कहने लगे अहमद सईद काज़मी, जितने भी तुम्हारे उलमाए देवबंद गुजर गए सब के सब काफिर ठहरे। और अगर तुम कहो कि नहीं वो काफिर नहीं थे, तो मोहम्मद यार फरीदी का भी वही अकीदा है जो अनवर शाह काश्मीरी और सारे देवबंद का अकीदा था। फर्क क्या रह गया? अगर इसने मोहम्मद को खुदा माना, तुमने भी तो मोहम्मद क्या सारी कायनात को खुदा माना। इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने इस पर एक किताब लिखी है शमाइम इमदादिया, और साबित किया है कि ये अकीदा ऐन इस्लामी अकीदा है और हक है। और उसकी मिसाल ऐसे दी है कि एक आदमी बीज बोता है, बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे की टहनियां हैं, फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, टहने हैं, जड़ है। कहा ये कहां से निकले सारे? कहा ये बीज से निकले। कहा बीज कहां गया? कहा बीज तो छुप गया। कहा यही हाल हमारा और अल्लाह का है, अल्लाह और मखलूक का है कि ये तो छुप गए, अल्लाह छुप गया और इसने अपना इजहार करना चाहा, जैसे बीज ने अपना इजहार करना चाहा दरख्त की सूरत में, ऐसे ही अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कुत्तों की शक्ल में निकला, खिंजीरों की शक्ल में निकला, बकरियों की शक्ल में निकला, पहाड़ों की शक्ल में निकला, अंबिया की शक्ल में निकला, नेक लोगों की शक्ल में निकला, फिरौन की शक्ल में निकला। ये सारी शक्लें अल्लाह ही की शक्लें, लेकिन रंग हर एक का अलहदा अलहदा है। पत्ते का रंग अलहदा है, फूल का रंग अलहदा, फल का रंग अलहदा, उसका जायका अलहदा है। पत्ते खाएंगे कोई जायका नहीं है, ये कड़वा जायका है, ये कसीला जायका है। फल खाएंगे तो मीठा है। कहा ये रंग मुख्तलिफ हैं, जायके मुख्तलिफ हैं, लेकिन लिखने सब के सब अल्लाह ही से। और फिर उस बदबख्त ने एक हदीस भी घड़ी, कहा कुन तो कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ये कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपना इजहार करना चाहा तो मैं जाहिर हुआ मखलूक की सूरत में। ये वो अकीदा है, अकीदा वहदतुल वजूद, जिसको मानने वाले सारे उलमाए देवबंद। अकीदे पर आप इनसे मसाइल पर गुफ्तगू कर लें, तैयार हो जाएंगे, रफुल यदैन पर गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे मामलात पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहें कि हमने आपसे गुफ्तगू करनी है अकीदे पर, कहाँ? अकीदे पर कोई गुफ्तगू नहीं। क्यों? इस अकीदे को साबित करने के लिए हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, जिसकी किताब का मैंने आपको हवाला दिया शमाइम इमदादिया, उसने किताब लिखी। एक और मिसाल देकर वाज़े करते हैं। कहते हैं पानी को आप भाप बनाएं, नीचे आग जलाएं, भाप बन जाएगी। पानी को आप फ्रीज करें, बर्फ बन जाएगी। अब ये बर्फ, इसकी खासियत और है, पानी की खासियत और है, इसकी माहियत और है, उसकी माहियत और है, रंग इसका मुख्तलिफ है, लेकिन ये आई कहाँ से? कहा पानी से। कहा ये भाप जो बनी है ये हवा है, उड़ने वाली है, उड़ जाती है, ये कहाँ से आई? पानी से। कहा असल तो पानी है ना, मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। इसी तरह असल हम अल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, हम अल्लाह के परतौ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे पीछे है, उसके अंदर से हम निकल रहे हैं। इस अकीदे को बयान करने के लिए यहाँ एक और किताब ने इमदादुल मुश्ताक पढ़ी है अशरफ अली थानवी साहब की। इमदादुल मुश्ताक इसी अकीदे को, इसकी शरह है, शमाइम इमदादिया की शरह है, अशरफ अली थानवी ने इमदादुल मुश्ताक के नाम से की है। तो ये उनके इस अकीदे का यानी सबूत है कि वो इसी अकीदे को मानने वाले थे। अशरफ अली थानवी भी इसी अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले, और उसको साबित करने के लिए किताब लिख रहे हैं। और आपने ये तीसरी किताब जो है फ़ज़ाइल सदक़ात, तो आपने देख ली कि ज़करिया साहब ने इसी अकीदे को वाज़े करने के लिए इसका इकरार किया है। और चौथी किताब अनवर शाह काश्मीरी की है, जिसने इस अकीदे को साबित करने के लिए फैज़ुल बारी में इसका जिक्र किया है कि हम अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले हैं। और ये हवाला इस काबिल नहीं तज़कियतुर रशीद का, ये आप बेशक फ़ोटो इसकी ले लें,
ये पढ़े जाने के काबिल नहीं है। हम इतनी गुस्ताखी अल्लाह ताला की यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह इस हवाले में जानी करार दिया है कि जिना करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाला भी अल्लाह है। ये अकीदा वहदतुल वजूद की वजह से कि सब कुछ जब अल्लाह ही की शक्लें हैं, औरत भी वही है, मर्द भी वही है, लिहाजा हम इसको तफसील से बयान नहीं कर सकते। जो आदमी इसका फ़ोटो देखना चाहे वो वीडियो में इसका फ़ोटो देख ले। ये किताब है तज़किरा रशीद अहमद गंगोही साहब का तज़किरा जो है वो जमा किया है आशिक इलाही मेरठी साहब ने। आगे हाजी इमदादुल, ये मेरी गाड़ी है, इसको तीसरे बटन से बंद करें। आगे जरा और इनके कुछ शिरकिया अकायद जो है मैं पहले इसी अल-मुहन्नस से बयान कर दूं, ताकि इन पर इनके बहुत से उलमा के 60 के करीब जो उलमा हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि हमारे अकीदे की किताबों को छोड़कर इन लोगों ने हमारी बहुत दूसरी किताबों को उठाया है। ये इनके यहाँ अकीदे की मुस्तकिल किताब। कहते हैं एक सवाल उनसे किया गया है, क्या सूफिया के इश्गाल में मशगूल और उनसे बैत होना तुम्हारे नजदीक जायज और अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैजान पहुंचने के तुम कायल हो या नहीं, और मशाइख की रूहानियत से अहले सलूक को नफा पहुंचता है या नहीं? सवाल इसको जरा समझ लीजिए। सवाल यह है कि तुम्हारे नजदीक एक तो है सूफिया के जो औराद हैं उनको पढ़ना, दूसरा ये है कि अकाबिर के सीने और कब्र से बातनी फैज पहुंचना। अकाबिर के सीने से बातनी फैज कैसे पहुंचता है? जैसा कि अरवाह इस्लासा और दूसरी किताबों में इनके हवाले मौजूद हैं कि एक पीर ने अपने मुरीद के साथ सीना लगाया, पीर के सीने का सारा इल्म मुरीद के सीने में ट्रांसफर हो गया। डाटा ट्रांसफर होता आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक फाइल यहीं से आप सेंड करें, बेशक इंग्लैंड सेंड करें, वो पूरी की पूरी फाइल उसके कंप्यूटर में जा पहुंचेगी। ये तो ईजाद अब हुई, इन्होंने इससे पहले ही ये ईजाद कर रखी थी कि किस तरीके से सीने के साथ सीना लगाकर इल्म ट्रांसफर कर दिया। पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये मदारिस बनाने की कोई जरूरत नहीं। इल्म ट्रांसफर करने का आसान सा तरीका है, सीने के साथ सीना लगाओ, ये पूरा इल्म ट्रांसफर हो जाए। कहते हैं कि अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैजान पहुंचने के तुम कायल हो या नहीं, व वसूलुल फ्यूजुल बातनिया अन सदूरिल अकाबिर व कबूरहिम, के अकाबिर के सीने और कब्रों से तुम जो फैज बातनी मिलता है तुम उसके कायल हो के नहीं। कब्र मिट्टी का गढ़ा है, अब इस मिट्टी के गढ़े से आपको क्या मिलेगा? वो मर गया, मरने वाला मर गया, उसका गोश्त कीड़े खा गए, हड्डियां मिट्टी खा गई, कुछ भी ना बचा। अब उसकी कब्र से कौन सा फैज है जो तुमको मिल रहा? ये अरवाह सलासा और दूसरी किताबों में मौजूद है कि उनकी कब्र की मिट्टी चाटने से शिफा मिलती। कब्र पर गया, उसकी कब्र की मिट्टी चाटी और इतनी मिट्टी लोग चाटने लगे कि उनके जो फर्जंद हैं वो कहने लगे एक दिन कब्र पर आकर, बाबा तुम्हारी करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत बुलाई, तुम्हारी कब्र की मिट्टी से लोगों को शिफा होती है, याद रखो अगर आइंदा शिफा हुई तो तुम्हें बगैर मिट्टी के यहीं पड़ा रहने दिया जाएगा, हम मिट्टी नहीं डालेंगे दोबारा। क्योंकि बार बार मिट्टी डालने से तंग आ गए थे उनके बेटे कि मिट्टी डालते हैं और लोग शिफा के लिए मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कहने लगे तुम्हारी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत बुलाई कि तुम करामत के तौर पर अपनी कब्र की मिट्टी से इनको शिफा याब कर रहे हो और हमारे लिए नित मुसीबत है कि हर रोज एक ट्राली उनकी कब्र पर जाकर डालनी पड़ती। कहा उस दिन के बाद जैसे ये मशहूर हुआ था कि कब्र की मिट्टी से शिफा होती है, ये भी मशहूर हो गया कि अब नहीं होती, पहले होती थी। डर गए बाबा जी अंदर पड़े पड़े कि अब तो फिर जूतियों समेत लोग चढ़ेंगे मेरे ऊपर। ये है वो कब्र से बातनी फैज। अब इसका जवाब सुनिए कि जवाब में वो क्या कहते हैं। कहते हैं अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज पहुंचना, सो बेशक सही है, मगर उस तरीक से जो उसके अहल और खास को मालूम है, ना उस तरह से जो अवाम में राइज है। कब्र से फैज हासिल करना बरेलवियों का अकीदा है, इसीलिए कब्रों के तवाफ करते हैं वो लोग, कब्रों पर जाकर जानवरों को ज़िबा करते हैं, नजर न्याज देते हैं
बरीमाम की कब्र पर सजदे होते हैं, गोरड़े की कब्र पर सजदे होते हैं। ये बरेलवी लोग और बरेलवी उलमा और बरेलवी आवाम ये कब्रों से फैज़ हासिल करने के कायल हैं, लिहाजा औलाद मांगने के लिए दौले शाह चले जाते हैं या अली हजवेरी के दरबार पर दाता मांगकर उससे सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन उलमाए देवबंद का ये कहना कि हम अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद के ये करतूत होते हैं कि कब्रों से फैज़ हासिल करें। अरे कब्र है क्या? आपने मिट्टी डाली है उस मुर्दे को दफन करके, और मुर्दा है कौन? कहा अमवातुन गैर अहया, ये मर चुका है, इसमें रमक जिंदगी की बाकी नहीं रही। इनको तो ये भी पता नहीं कब इनकी कब्रों को फाड़ा जाएगा। जब इनको ये पता नहीं तो आपको वो फैज़ क्या देंगे? ये है वो दूसरा अकीदा कि जो उलमाए देवबंद बयान करते हैं और ये समझते हैं कि हम जो हैं वो अहले तौहीद हैं। वसीले का इसमें बयान है और मुख्तलिफ चीज़ों का बयान है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये मसाइल उनके यहाँ और उलमाए बरेली के यहाँ इख्तलाफी हैं, या उलमाए अहले हदीस से वो गुफ्तगू करते हैं। नबी कब्र में ज़िंदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी दुनियावी होती है, हम इस पर अभी बहस नहीं करते। हमने सिर्फ दो मसले अकीदे के जो बुनियादी मसले हैं, एक में इमाम अबू हनीफा उसको काफिर करार दे रहे हैं और दूसरे अकीदे में वो अपने बरेलवी भाइयों के साथ अपना गठ जोड़ कर रहे हैं कि नहीं हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो ये है वो दो अकीदे जो इसमें से आपको दिखा दिए जाएंगे। एक और हवाला इस बात का कि कब्र से जो फैज़ हासिल किया जाता है उसमें ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी साहब की तसनीफ़ व तालीफ, और तस्करा है हज़रतुल हाज शाह मोहम्मद इमदादुल्ला साहब महाजर मक्की का, सफ़ा नंबर इसका 123। इसमें वो ये बात बयान और हकायत नंबर 290 है। कहते हैं मैं रावी मलफूजात हजरत की खिदमत में ग़िज़ाए रूह का वो सबक वो हजरत शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में सुना रहा था। जब असर मज़ार शरीफ का बयान आया, आपने फरमाया कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था। बाद इंतकाल हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज़ किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मुहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज़ार से 2 आने या आध आना रोज़ मिला करेगा। शायद वहाँ टिकसाल लगाई हुई थी पीर साहब ने कब्र के अंदर के सिक्के बना बना कर बाहर भेज रहे थे कब्र से। एक मरतबा मैं ज़ियारत मज़ार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज़ वजीफ़ा मुकर्रर यही कब्र से मिला करता है। हाशिया कौलहु वजीफ़ा मुकर्ररा अकूल, ये मुंजमला करामात के है, यानी ये पीर साहब की करामत है कि वो अंदर से टिकसाल लगाकर वो मुरीद को सिक्के भेज रहे हैं कि जो तुमसे मैंने वादा किया था कि तुमको हर रोज 2 आने या आध आना रोज मिला करेगा, उसी तरीके से मिलता रहा। अब इसी का एक हवाला मैं और भी बयान कर देता हूं। ये नूर मोहम्मद हैं जो इमदादुल्लाह महाजर मक्की के उस्ताद हैं। कहते हैं तुम हो ए नूर मोहम्मद खास महबूब खुदा, हिंद में हो नायब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ क्या, इश्क की पर सुन के बातें कांपते हैं दस्तो पा, ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। क़यामत के दिन ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की अपने पीर से कहेंगे ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। कहते हैं कि तुम खास महबूब खुदा हो। इसको कैसे पता लगा कि नूर मोहम्मद जो हैं वो खास महबूब खुदा हैं और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिंद में नाइब हैं? क्या अल्लाह के नबी नूर मोहम्मद को नाइब बनाकर गए थे? कहीं हदीस में ये तज़किरा मिलता है कि हिंद में मेरा नाइब जो है वो नूर मोहम्मद साहब हैं। कहते हैं तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ किया। जब तुम मेरी मदद करने लग जाओगे तो फिर मुझे इमदादुल्लाह महाजर मक्की को किस चीज़ का खौफ? अल्लाह कहता है कोई शख्स उस वक़्त किसी की मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से भी कह दिया था वला उगने अनके मिनल्लाहि शैआ, ए फातिमा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तुझे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकूंगा। आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को बचाने के लिए सिफारिश करेंगे कि अल्लाह मेरी इसमें बड़ी रुसवाई है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा सकेंगे, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ना बचा सकेंगे, अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब को ना बचा सकेंगे। कुरान कहता है कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन। नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को कहा जाएगा तुम भी जहन्नम में वैसे चली जाओ जैसे और लोग जहन्नम में जा रहे हैं। वलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, ये दोनों अंबिया अपनी बीवियों को न बचा सकेंगे। और यहाँ कहते हैं कि जब तुम मदद करने लग जाए फिर मुझे किस चीज का डर है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। कहते हैं आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी जात का, अल्लाह का आसरा नहीं है। आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी जात का, तुम सिवा औरों से हरगिज नहीं है इल्तिजा, बल्कि दिन महशर के जिस वक्त काजी हो खुदा, आपका दामन पकड़कर यूं कहूंगा बरमला, ऐ शाह नूरे मोहम्मद वक्त है इमदाद। अल्लाह पूछना चाहता है, इसको पकड़े हुए है और ये अपने पीर से कह रहा है मेरी तरफ से तू जवाब दे, वक्त इमदाद का है, मेरी मदद कर। मुझसे अल्लाह सवाल कर रहा है। अब ये कुछ अशआर कुलियात इमदादिया के वो भी हम आपके सामने बयान करते हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि इन लोगों के अकीदे क्या हैं। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद। इससे पहले मैं एक और हवाला कि मैं भूल न जाऊं उसको बयान करना चाहता हूं जो अकीदा वहदतुल वजूद में शामिल किया जाए। ये ज़ियाउल कुलूब है कुलियात इमदादिया में पहली किताब, उसका सफ़ा नंबर 18 पर कहते हैं और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। एक आदमी जिक्र कर रहा है अल्लाह का, उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जब एक इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो कहते हैं कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज हू रह जाए और इस मर्तबा पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की करके मर्तबा सिर्फ पर पहुंच जाएगा। अल्लाह का एक आदमी जिक्र कर रहा है, कहते हैं इस तरह जिक्र किया जाए कि इसमें जात के जिक्र में इस तरह मुतवज्जे हो जाए कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है, अल्लाह इसमें अलिफ लाम है और है, कहते हैं कि इस तरह तवज्जो करे इसमें जात के जिक्र में कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज हू रह जाए। इस तरह मर्तबे पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की के मर्तबा सिर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए, बंदा अल्लाह बन जाए। और फना दर फना के यही माने हैं, इस हालत के हासिल होने पर वो सरापाए नूर हो जाएगा। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद कि इंसान जिक्र करते करते अल्लाह के अंदर फना हो जाता है। हाशिये में लिखते हैं विलायत यानी जो लोग हम कहते हैं कि वली हैं, विलायत खुदा ही में फना होने और अपनी बका को खुदा की बका से और अपने ज़हूर को खुदा के ज़हूर से हासिल करने को कहते हैं। जब तक कि वो अल्लाह में फना नहीं हो जाता वली नहीं बनता। अल्लाह में फना होकर अल्लाह बन गया बस अब ये वली है। तो ये है उनका वो अकीदा है वहदतुल वजूद। आइए उसके सफ़ा नंबर 90 पर उनके कुछ अशार में आपको बतला देता हूँ। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। चेहरा ए ताबा को दिखला दो मुझे तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अब बरेलवियों में और क्या फ़र्क रह गया देवबंदियों में कि फरियादें अल्लाह के नबी से कर रहे हैं। बरेलवी भी यही कहते हैं या रसूलल्लाह मदद, बरेलवी भी कहते हैं अगिस्नी या रसूलल्लाह, अदरिकनी या रसूलल्लाह। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि फरियाद है ए अल्लाह के नबी आपसे फरियाद है। और अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है मुझसे फरियादें करने वाला, मेरे अलावा कायनात में कौन है जो फरियादों को सुने। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, जब भी कोई पुकारने वाला उसको पुकारता है अल्लाह ही है जो उसकी फरियादें सुनता है। अल्लाह तो ये दावा कर रहा है कि मैं फरियादें सुन रहा हूँ। यहाँ फरियादें की किसको जाती हैं?
उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझको पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए नबी जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें उनको कह दो इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी पुकारने वाला मुझको पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फल यस्तजीबू ली, इनको भी चाहिए मेरी बात को भी माने। अब अल्लाह कह रहा है कि लोग मुझको पुकारते हैं, यहाँ हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं या रसूल किबरिया फरियाद, अल्लाह को पुकारने की बजाय रसूल को पुकार कर क्या कहा जा रहा है, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। कौन है मुश्किल कुशा? अल्लाह के अलावा अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। जो लोग ये कहते हैं कि अली मुश्किल कुशा, नबी मुश्किल कुशा, उनका ये अकीदा गलत है, शिरकिया अकीदा है। यहाँ लिखने वाला ये भी कहता है कि चेहरा ताबा को दिखला दो मुझे, तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं या अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, तो फिर बरेलवियों में और देवबंदियों में क्या फर्क रहा? जो ये नूर और बशर का झगड़ा देवबंदियों और बरेलवियों में चला करता था कि नहीं अल्लाह के नबी नूर हैं बशर नहीं, यहाँ उन्होंने खुद कह दिया तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है कि ए अल्लाह के नबी आप तो खुदा का नूर हैं। कोई फर्क बाकी नहीं रहा इनमें। ये शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग और बरेलवी शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग, इनमें और उनमें कोई फर्क बाकी नहीं रहा। ये एक और किताब है, मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी की इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। इसका सफा नंबर 38 है, उस पे वो बाब बांधते हैं देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ। कहते हैं तीसरा इख्तिलाफ जिसके बारे में आपने मेरी राय तलब की है वो देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ है, और आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें से हक पर कौन है। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज ही मोजिब हैरत है कि जब ये कहा जाए कि बरेलवियों और देवबंदियों में इख्तिलाफ है तो ये लफ्ज ही कहते हैं मुझे हैरत में मुब्तला कर देता है कि देवबंदी और बरेलवियों में इख्तिलाफ कैसा। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज ही मोजिब हैरत है। आप सुन चुके हैं कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ तो सहाबा इकराम को मानने या ना मानने के मसले पर पैदा हुआ, और हनफी वहाबी इख्तिलाफ आइम्मा हुदा की पैरवी करने न करने पर पैदा हुआ, लेकिन देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ की कोई बुनियाद मेरे इल्म में नहीं है। इसलिए कि ये दोनों फरीक इमाम अबू हनीफा के ठेठ मुक़ल्लिद हैं। अकायद में दोनों फरीक इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को इमाम और मुक्तदा मानते हैं। तसव्वुफ और सलूक में दोनों फरीक औलिया अल्लाह के चारों सिलसिलों कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदियों में बैत करते करवाते हैं। अब क्या इख्तिलाफ बाकी रहा? हम कहते थे कि ये लोग तौहीद वाले नहीं हैं और इनके अकीदे भी वैसे ही शिरकियां हैं जैसे अकीदे बरेलवियों के शिरकियां हैं। तो लोग कहते नहीं देवबंदियों के, हमारे उलमा भी ये कहते थे देवबंदियों के पीछे नमाज हो जाती है। क्यों? ये अहले तौहीद हैं। इनकी असल किताबें बोलकर क्या बतला रही हैं कि तौहीद का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन उलमा को इन किताबों को चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, इनकी असल किताबों को उनके जेरे मुताला नहीं आई, लिहाजा उनको ये गलतफहमी रही कि उलमाए देवबंद भी अहले तौहीद हैं। ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नबी फरमाए 73 गिरोह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, के 72 जहन्नमी और जहन्नम में जाने वाले वो लोग भी हो जाएं।